आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के गांव के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सिलीगुड़ी के बाजारों में भारत बंद असरदार बंद के समर्थन में व्यवसायियों ने निकाली रैली। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि व जीएसटी कानून के खिलाफ व्यवसायियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा शुक्रवार को यानी आज देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। बताया जाता है कि करीब देश भर के करीब 40,000 व्यवसायी संगठन ने आज भारत बंद का समर्थन किया है। जीएसटी के खिलाफ आज आहूत हड़ताल का सिलीगुड़ी समेत उत्तर बंगाल के सभी बाजारों पर व्यापक असर देखने को मिला। भारत के सबसे बड़े थोक मंडी सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में सुबह 9 बजे तक सारी दुकानें बंद थी। सड़कें सुनसान थी, बाजार में सन्नाटा पसरा था। दूसरी ओर भारत बंद के समर्थन में सिलीगुड़ी के व्यवसायी संगठनों की ओर से कंचनजंगा स्टेडियम से एक रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रैली में शामिल व्यवसायियों ने पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि व जीएसटी के खिलाफ केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की। समस्त प्रेसের বন্ধুগণ, কর্মসূচি অনুসারে আজকে 26শে ফেব্রুয়ারি আমরা আমাদের ব্যবসা বন্ধ পালন করছি এবং ব্যবসা বন্ধের সাথে সাথে আমরা এখান থেকে র্যালি বের করছি। দুটো র্যালি আমাদের আসছে, ভেনাস মোড়ে মিলিত হচ্ছে। একটা রেলগেটের ওপার থেকে আসছে, একটা এই পার থেকে আসছে। সংখ্যা তত্ত্বতে না গিয়ে যাওয়াই ভালো। আজকে আমরা যেটা বলতে চাই, জিএসটির কাছে, গভর্নমেন্টের কাছে আমাদের বার্তা পৌঁছাতে চাই যে আপনারা আমাদেরকে না নিয়ে আপনাদের মতন করে কানুন যেগুলো বানান, সেই কানুনগুলো কিন্তু আমাদের কাছে হলো ফাঁসির ফান্দা তৈরি করা হচ্ছে। কেন ফাঁসির ফান্দা তৈরি করা হচ্ছে আমরা নিজেরা বুঝতে পারছি না। কারণ একটা পারচেজার, রেজিস্টার্ড পারচেজার আরেকটা রেজিস্টার্ড পারচেজারের কাছ থেকে কিনলো এবং সেই কেনার দায়িত্ব পারচেজারের কেন আবার হবে? যদি হলো সেলার হলো যদি রিটার্ন না দেয়, তার দায়িত্ব হলো আমাদের উপরে বর্তে দেওয়া হচ্ছে। আমাদেরকে সেই ট্যাক্স দিতে হবে, সেই ফাইন দিতে হবে, পেনাল্টি দিতে হবে। তো এইগুলো আর যদি আমরা না দিই, সেখানটায় আমাদের হলো ব্যবসাকে হলো অ্যাটাচ করা হবে, আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে অ্যাটাচ করা হবে, আমাদের প্রপার্টি অ্যাটাচ করা হবে, ক্যান্সেলেশন অফ রেজিস্ট্রেশনও হবে। তো এইগুলো সরাসর আমরা বুঝতে পারছি এটা কালা কানুন ছাড়া কিছু নয়। ট্রান্সপোর্টারদের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, একটা গাড়ি 100 কিলোমিটার হলো ছিল, কারণ আপনারা জানেন ট্রান্সপোর্টের গাড়িগুলো মোটামুটি হলো রাত্রে হলো মুভ করে এবং কোনো কারণে গাড়িটা জ্যামে যদি পড়ে যায় বা রাস্তায় কোনো ব্রেকডাউন হয়, সেই গাড়িতে যে ইওয়ে বিল আছে সেটা 24 ঘন্টার জন্য দেওয়া হচ্ছে। 100 কিলোমিটার সেটাকে বাড়িয়ে 200 কিলোমিটার করা হয়েছে। 200 কিলোমিটার এবং কোনো কারণে যদি সে সেই টাইমের মধ্যে না পৌঁছায়, তার উপরে 200% ট্যাক্স ইম্পোজ করা হবে। যে টোটাল ট্যাক্স আছে তারও 200% ফাইন হিসেবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ধরুন যে 18% ধরে যদি 18 টাকা হয়, তার উপরে আমাকে 36 টাকা ট্যাক্স দিতে হবে। 54 এরকম হলো 25-26টি বিষয় আছে। আমি আপনাদের হাতে মেমোরেন্ডামের কপি তুলে দিচ্ছি, সেখান থেকে আপনারা আরও ভালো মতন জানতে পারবেন। তো এইগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি আমাদের ব্যবসায়ীদের উপরে কিন্তু একটা আক্রমণ, বৃহত্তর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে এবং ছোট ব্যবসায়ী, মাঝারি ব্যবসায়ীরা যাতে ব্যবসা না করতে পারেন তার একটা হলো চক্রান্ত চলছে। এটাকে আমরা চক্রান্তর সাথে বলছি এই কারণে যে অধিকার কেউ কাউকে দেয় না। अलीपुरद्वार में केंद्रीय वाहिनी के जवानों के द्वारा किया गया रूट मार्च। चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान अब तक नहीं किया गया है, पर
चुनाव आयोग व पुलिस प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले में अर्धसैनिक बलों के पहुंचने की कवायद शुरू हो चुकी है। अलीपुरद्वार जिले में भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बलों के जवान भेजे गए हैं। शुक्रवार सुबह यानी आज अलीपुरद्वार जिले के ऐथलबाड़ी जोगीझारा इलाके में अर्धसैनिक बलों के जवानों ने रूट मार्च किया। उनके साथ जटेश्वर आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। पूरे उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी में भारत बंद असरदार। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि व जीएसटी कानून के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी हड़ताल आह्वान किया गया है। जीएसटी के खिलाफ आज आहूत हड़ताल का सिलीगुड़ी समेत पूरे उत्तर बंगाल के बाजारों पर इसका असर देखने को मिला। भारत के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट में आज सुबह सारी दुकानें बंद थी। सड़कें सुनसान रहे, बाजारों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जीएसटी की खामियां और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ आज 8 करोड़ व्यापारी है हड़ताल पर। ट्रांसपोर्टर्स व किसान संगठन भी कर रहे हैं समर्थन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने जीएसटी की खामियों और ई कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन AITWA इसको समर्थन कर रहा है। यह लगभग 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कई व्यापारी संगठनों ने इससे दूरी बना ली है। किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने किसानों से बंद में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है। उसने एक बयान में कहा कि वह देश के सभी किसानों से भारत बंद का शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करने और बंद को सफल बनाने की अपील करते हैं। चुनाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर बंगिया शिक्षक व शिक्षाकर्मी संघ ने SDO को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक व शिक्षाकर्मी संघ की ओर से चुनाव कार्यों में नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षाकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी के SDO को ज्ञापन सौंपा गया। बंगिया शिक्षक व शिक्षाकर्मी संघ के दार्जिलिंग जिला शासक के संयोजक मानिक चंद्र दास ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव कर्मियों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, प्रत्येक बूथों में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था करने, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की मांग को लेकर आज SDO को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में इन सब चीजों का अभाव देखा गया था, जिससे चुनाव कर्मियों को काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। যে ইউনিট তার নাম হচ্ছে BSSS বঙ্গীয় শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সংঘ। এই বঙ্গীয় শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সংঘ শিক্ষা ও সমাজের স্বার্থে, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির স্বার্থে লড়াই করে আসছে, লড়াই করছে। আমরা গত 10ই ফেব্রুয়ারি বিকাশ ভবনে আমাদের ABRSM-এর তরফ থেকে আমরা একটি ডেপুটেশন জমা দিয়েছি, যেখানে অনেক রকম দাবি দেওয়া ছিল। কিন্তু আজকে আমাদের এই দার্জিলিং BSSS দার্জিলিং নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় DM অফিসে, ADM অফিসে, SDO অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হচ্ছে। কেন? আসন্ন যে বিধানসভা নির্বাচন হচ্ছে, সেই নির্বাচনে আমাদের যে ভোটকর্মী রয়েছে, বেশিরভাগ আমাদের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, প্রাথমিক স্তরের যে শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছে ভোটকর্মী হিসেবে, তাদের যে সুরক্ষা, তাদের যে নিরাপত্তা, তার দাবি শুধু আমাদের স্কুল নয়, আমাদের স্কুল ডিপার্টমেন্টের পাশাপাশি যেসব যত রকম ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, যত ভোটকর্মী রয়েছে, তাদের নিরাপত্তা, তাদের সুরক্ষা দাবিতে শুধু ভোটকর্মী নয়, আমরা ভোটারদেরও সুরক্ষার দাবি করছি, ভোটারদেরও নিরাপত্তার দাবি করছি। যে দাবির ভিত্তিতে আমরা প্রতিটি জেলায় ডেপুটেশন দিচ্ছি। সেই জন্য দার্জিলিং BSSS আমাদের SDO অফিসে, যেহেতু SDO সাহেবা হচ্ছে আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টের রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, তার জন্য তার কাছে আমরা অলরেডি ইন্টিমেশন দিয়ে রেখেছি। আজকে আমাদের ডেপুটেশনের ডেট। আমাদের যে দাবিগুলো আছে, দাবিগুলো খুব সুসংগত এবং বাস্তব। আমাদের দাবিগুলো এক এক করে আমরা বলছি। প্রথমত হচ্ছে ভোটার এবং ভোটকর্মী, তার নিরাপত্তা এবং তার সুরক্ষা। विगत अभिज्ञता हमारे खूब तिक्त मंत्री गौतम देव ने दीवार पर बनाया चुनाव चिन्ह, लोगों से वोट की अपील। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तिथि का ऐलान भले ही ना किया गया हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव प्रचार की पूरी तरह तैयारी कर चुकी है और जोरों शोरों पर चुनाव प्रचार अभियान चला रही है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बड़े स्तर के नेता खुद चुनाव प्रचार में उतर आए हैं। इस बीच तृणमूल विधायक तथा राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने खुद दीवार पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाते हुए चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की।
उन्होंने अपने विधानसभा इलाके में खुद दीवार लेखन का काम किया। सिलीगुड़ी नगर निगम के 35 नंबर वार्ड के मनुशेर काछे चोलो नामक जनसंपर्क अभियान के तहत दीवार लेखन के दौरान मंत्री ने पार्टी का चुनाव चिन्ह दीवार पर बनाया और लोगों को तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस को बंगाल की सत्ता पर काबिज करने का आह्वान किया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार गिब्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए गिब्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। GST की खामियां और ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ आज 8 करोड़ व्यापारी है हड़ताल पर। ट्रांसपोर्टर्स व किसान संगठन भी कर रहे हैं समर्थन। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने GST की खामियों और ई-कॉमर्स से संबंधित मुद्दों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन AITWA इसको समर्थन कर रहा है। यह लगभग 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारी संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कई व्यापारी संगठनों ने इससे दूरी बना ली है।
किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने किसानों से बंद में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील की है। उसने एक बयान में कहा कि वह देश के सभी किसानों से भारत बंद का शांतिपूर्ण ढंग से समर्थन करने और बंद को सफल बनाने की अपील करते हैं। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन GST का विरोध नहीं करती। GST के जो प्रोविजंस आए हैं पिछले बजट में उसका विरोध करती है। ये छोटे व्यापारी मझले व्यापारियों के पूर्णतः खिलाफ है। ऐसे ऐसे प्रोविजन लाए गए हैं जिससे वो GST की पेचीदगियों में उलझ जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे व्यापारियों के पास नहीं होता, मझले व्यापारियों के पास नहीं होता, न उनके पास इतनी पूंजी होती है कि वो सरकार को पेनल्टी दे सके। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है जो पूर्णतः व्यापार को खतरे में डाल देगा और व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि देश में रोजगार की कमी है। एक तरफ सरकार बोल रही है आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता के लिए सरकार उत्साहित कर रही है, और दूसरी तरह ऐसे पेनलाइज प्रोविजंस ला रही है जो व्यापारियों का जीना हराम कर देगी और उन्हें बाध्य कर देगी वो व्यापार छोड़ दें। उनके पास सिवाय सड़क पे आने के कोई रास्ता नहीं। विधानसभा चुनाव के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की ओर से भेजा गया कारण बताओ नोटिस। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया है और इसी कड़ी में अलीपुरद्वार में भी सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इस प्रशिक्षण शिविर में 100 से ज्यादा शिक्षक नहीं पहुंचे थे। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन जो जिले का मुख्य चुनाव संचालन कार्यालय है उसके द्वारा 100 से भी ज्यादा शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इन शिक्षकों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेता व कर्मी भी शामिल है। मुख्य रूप से इनमें अलीपुरद्वार महिला तृणमूल कांग्रेस नेत्री दीपिका रॉय, जिला के साधारण सचिव भास्कर मजुमदार आदि है। इस संबंध में जिला तृणमूल कांग्रेस सभापति मृदुल गोस्वामी से पूछे जाने पर वह पत्रकारों पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि क्या आप लोग क्या भाजपा की तरफ से आए हैं? उन्होंने कहा कि हमारे नेता और कर्मी चुनाव की ड्यूटी में नहीं जाएंगे। जनप्रतिनिधि कानून अनुसार पार्टी में सक्रिय कर्मियों और नेताओं को चुनाव कार्यों में नहीं लगाया जाता है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम लोग भी इस मामले में कानून की मदद लेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे 100 से ज्यादा सरकारी कर्मियों को नोटिस भेजा गया है, हम लोग भी कानून के अनुसार ही इसका जवाब देंगे। প্রশাসনের কাজ প্রশাসন করেছে, আমার দলের কাজ আমরা করব। আপনারা কি প্রশাসনের সাথে আমাদেরকে বিতর্কে জড়াতে চাইছেন? আপনারা কি চাইছেন? আপনারা কি বিজেপির দ্বারা পরিচালিত? এটার প্রশ্নের উত্তর আগে আমাকে দিন। প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করেছে, শোকজ করা আইনের মধ্যে আছে, শোকজের উত্তর দেওয়াটাও আইনের মধ্যে আছে। আমরা শোকজের উত্তর দেবো। কত সংখ্যক চেয়েছিলেন, কত সংখ্যক দিয়েছে? আমাদের দেয়নি। এখন আমাদের যারা দলের কাজ করে, যারা পোলিং এজেন্ট থাকবে, যারা বুথে কাজ করবে তারা ডিউটিতে যাবে না। আবার বলছি, পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট যেটা আছে তাতে কোনো ব্যক্তি যদি সক্রিয়ভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকে তাকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। আইনটা আমরা জানি। তা আমার দলের জেলার সভানেত্রী মহিলা, তাকে ডিউটি দিয়েছে, সে যায়নি, শোকজ করেছে, উত্তর দিয়ে দাও। তা বলে দেবো এরা যাবে না ডিউটিতে, ব্যাস। তারা শোকজ করবে, উত্তর দেবো। শোকজ পেয়েছেন মানে আমাদের কর্মীরাও পেয়েছেন, নেতা নেত্রীরাও পেয়েছি আমরা শোকজ। আর সেটা হচ্ছে জেলা প্রশাসন আইন যা আছে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছে, আমরাও আইন অনুযায়ী তার উত্তর দেব। কারণ ঘটনাটা হচ্ছে 1951-এ পিপলস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী বা পদাধিকারী ভোটিং প্রসিডিওরে যুক্ত থাকতে পারেন না। তা আবার পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা রাজনীতি করতে পারি, রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী হতে পারি, পদাধিকারী হতে পারি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে এটা ভোটের স্বার্থে আমাদের প্রশাসনের নজরে আনা উচিত, আমাদের সাপ্রেস করা উচিত নয় যে আমরা রাজনীতি করি না, এরকম সাপ্রেস করে ভোটের ডিউটিতে যাওয়া উচিত নয়। তাতে ভোটের স্যাংটিটি নষ্ট হতে পারে। এই জন্য আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি আমাদের এক্সেমশন দেওয়ার জন্য। আমাদের জেলা সভাপতি মাননীয় মৃদুল গোস্বামী মহাশয় আমাদের নামের তালিকা প্রশাসনকে দিয়েছেন গত 22 তারিখে। পাশাপাশিভাবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে, সেটা হলো যে আমরা এই রাজ্যে শিক্ষক শিক্ষিকারা একটা অধিকার ভোগ করি, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক দল করবার।
এবং আমাদের সারা বছর দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমরা থাকি। তো হঠাৎ করে ভোটের সময় যদি আমাদেরকে অফ হয়ে যেতে হয় তাহলে সেখানে দলের ক্ষেত্রে ক্ষতির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সমস্ত জায়গা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল সেইগুলো জায়গায় কাজ করতে অসুবিধা হয়ে যায় অন্যের নতুন কারুর, যার জন্য আমরা আবেদন জানিয়েছি। अर्धसैनिक बलों के जवानों को जय बंगला लिखा हुआ मास्क वितरण करने से भड़की भारतीय जनता पार्टी, रायगंज में सड़क अवरोध कर जताया विरोध। उत्तर दिनाजपुर जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए केंद्रीय वाहिनी के जवान पहुंच चुके हैं, लेकिन इन जवानों को तृणमूल कांग्रेस का नारा जय बंगला लिखा हुआ मास्क देने से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। इन जवानों को उत्तर दिनाजपुर जिला पुलिस के द्वारा जय बंगला लिखा हुआ मास्क दिया गया है। जवानों ने पूरे इलाके में यही मास्क पहनकर रूट मार्च किया। इस मुद्दे को लेकर भाजपा काफी नाराज दिखाई दे रही है। भाजपा के द्वारा रायगंज के महात्मा गांधी रोड में सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध करीब 1.5 घंटे तक चला। भाजपा की तरफ से कहा गया कि अगर जवानों से जय बंगला लिखा हुआ मास्क वापस नहीं लिया गया तो वे जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। भाजपा उत्तर दिनाजपुर जिले के महासचिव प्रवीण घोष ने बताया कि पुलिस की भूमिका काफी निंदनीय है। हमारी मांग है कि केंद्रीय वाहिनी को जो जय बंगला लिखा हुआ मास्क दिया गया है उसको वापस लिया जाए और भविष्य में ऐसा दोबारा ना किया जाए, नहीं तो हम लोग काफी जोरदार तरीके से आंदोलन। আজকে আমরা উত্তর দিনাজপুর জেলা দেখতে পেলাম যে সমস্ত সেন্ট্রাল বাহিনী বা কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন্দ্র সরকার পাঠিয়েছে, সেই সমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে বর্তমান যে সরকার চলছে, বর্তমান যে সরকার পুলিশকে দলদাসে পরিণত করে পুলিশের মারফতে একটা করে প্রত্যেকটা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে, যার উপরে বাংলায় লেখা আছে জয় বাংলা। এবার জয় বাংলা বাংলায় লেখা থাকার দরুন কেন্দ্রীয় বাহিনী যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তারা এসছে, সেই সমস্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীরা তারা বাংলা পড়তে জানে না, সেই জন্য বাংলা লিখে জয় বাংলা লিখেছে মাস্কের ওপরে, যেটা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে একটা অপমানজনকভাবে তাদেরকে হীন করা হচ্ছে। এইটা বিজেপির পক্ষ থেকে এইটা অসম্মানজনিতভাবে যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অসম্মান করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে বিজেপি পথে নেমেছে। আমরা এটা আধা ঘন্টা যাবৎ করছি এই অবরোধ, এরপরে আমরা তুলে দেব, কারণ পথ অবরোধ করে সাধারণ পাবলিকের অসুবিধা আমরা করতে চাই না। সাধারণ যে আপামর জনসাধারণ আছে তাদের নিত্যদিন এইভাবে চলাফেরার সময় যদি আমরা এইভাবে যানজট সৃষ্টি করি তাহলে যাতায়াতের অসুবিধা হবে। আমার নাম প্রবীর ঘোষ, জেলা সম্পাদক भारतीय जनता पार्टी। सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट के लिए जारी की नई पॉलिसी, सोशल मीडिया पर कसा जा सकेगा शिकंजा। आखिरकार सरकार ने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल में लेने के मुद्दे पर अपने पत्ते खोल ही दिए। ऑनलाइन कंटेंट के नए नियम जारी किए गए। सोशल मीडिया पर नकेल तो कसी ही है। न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म और मनोरंजन करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी सेल्फ रेगुलेशन के बंधन में बांध दिया है। सरकार ने इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत नए नियम बनाए गए हैं। नाम दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, और इसमें सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल न्यूज कंपनियों के लिए गाइडलाइंस तय की है। 3 तरह के प्लेटफॉर्म के लिए नियम कायदे बनाए गए हैं। 1 सोशल मीडिया, 2 डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म और 3 ओवर द टॉप या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया के ज्यादातर नियम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हैं, जो यूजर्स को कम और कंपनियों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यूजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बंद होगा। फेक न्यूज, अफवाहें, दुष्प्रचार और आपत्तिजनक कंटेंट रोकने में सरकार को मदद मिलेगी। महिलाओं के सम्मान से जुड़े कंटेंट का खास ध्यान रखा जाएगा। अगर सोशल मीडिया पर किसी की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की जाती है तो शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। इसके लिए पीड़िता की शिकायत जरूरी नहीं होगी। कोई अदालत या सरकारी संस्था किसी आपत्तिजनक, शरारती ट्वीट या मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर की जानकारी मांगती है तो कंपनियों को देनी होगी। यह भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा से जुड़े मामलों, सामाजिक व्यवस्था, दूसरे देशों से रिश्ते, रेप और यौन शोषण जैसे मामलों में लागू होगा। खेत के चारों ओर लगे बिजली के तार की चपेट में आने से एक सांडव, 7 सीआर की मौत। उत्तर दिनाजपुर जिले के धनकेल ग्राम पंचायत अंतर्गत मध्य दुर्गापुर के झारपड़ा इलाके में मवेशियों के खेत में प्रवेश करने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर लगाए गए बिजली के तार की चपेट में आने से एक सांडव
7 सीआर की मौत हो गई। आज सुबह घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आरोपी का नाम भद्र रॉय है। बताया जाता है कि घटना के बाद आरोपी द्वारा मवेशियों को जमीन के नीचे गाड़कर घटना को दबा देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन किसी तरह खबर लोगों में फैल गई। इसके बाद काफी संख्या में लोग खेत पहुंचकर घटना के विरोध करने लगे। पशु प्रेमी संस्था पीपल फॉर एनिमल व कालियागंज थाने की पुलिस इस बारे में सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृत सांड को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं पीपल फॉर एनिमल्स की ओर से आरोपी भद्र रॉय के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। दूसरी ओर आरोपी की पत्नी ने घटना पर खेद जताया। এটা জঘন্যতম একটা ঘটনা ঘটেছে 2 নম্বর ধনকল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্য দুর্গাপুর ঝাড়পাড়ায়, যেখানে বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে, যেটাকে আমরা ইলেকট্রোকিউশন বলি, যে গমের ক্ষেতে চারিদিকে ইলেকট্রিক তার জড়িয়ে রেখেছিল এবং তার সংস্পর্শে এসেই 7টি শিয়াল, একটি ষাঁড় গরু মারা গেছে। হ্যাঁ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন 1972, হান্টিং ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট 1972, তারপরে আইপিসি 428/29 এবং ইলিগাল ইউজ অফ ইলেকট্রিসিটি, এগুলো ধারা দিয়ে আমরা কালিয়াগঞ্জ থানায় এফআইআর লজ করছি। বন দপ্তরও লোকজনও সেখানে পৌঁছেছে। আমাদের এনজিও থেকেও আমরা কালিয়াগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চলেছি। এটা সুমন রায় আর ভদ্র রায় দুজন লোক ছিল, যারা বাবা ছেলে। তারা চেয়েছিল যাতে তাদের খেতে কোনো প্রাণী বা মানুষ না ঢুকে যায়, তার জন্যই এই জঘন্যতম একটা ব্যবস্থা করেছিল, ইলেকট্রিক তার দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। এই ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আমরা চাই দোষীদের চরম থেকে চরমতম শাস্তি হোক, যাতে ভবিষ্যতে এরকম কেউ করতে না পারে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।